science class. Children, today we are going to learn a very important chapter of class 7 science. Water, a precious resource. जल एक बहुमूल्य संसाधन। बच्चों, क्या आपको पता है हमारा जो ब्रेन है 75% वाटर से बना हुआ है और उसी तरह से सारे जीवित पौधे all living plants are made of 75% of water. बच्चों, क्या आप जानते हो अगर हमारे शरीर में 1% पानी की कमी हो जाए तो तब हमें प्यास लगती है और अगर हमारे शरीर में 10% पानी की कमी हो जाए तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं अगर एक मनुष्य को 1 महीने तक भोजन नहीं मिला तो भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना हम 1 सप्ताह ही जिंदा रह सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में करीब 1.5 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। सो डियर चिल्ड्रन, वाटर इज अ वेरी एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फाउंड अराउंड अस। पानी एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है जो हमारे आसपास पाई जाती है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. Do you know children, 22nd March is celebrated as a World Water Day to bring or to create awareness among the common mass regarding conserving water. बच्चों, जल है तो कल है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों, यदि जल उपलब्ध होगा तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है जल एक बहुमूल्य संसाधन, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है। दैट इज हाउ मच वाटर इज अवेलेबल ऑन आवर अर्थ. चिल्ड्रन, आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 71% ऑफ वाटर. हमारे पृथ्वी 71% ऑफ वाटर से बनी हुई है और उसमें से जो है 97.5% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन एंड सीज and 1.5% is in the form of glaciers and icebergs, and 1% is the fresh water which is present in rivers, lakes and ponds. तो बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि केवल 1% पानी ही पीने लायक है. That is only 1% of water, that is the fresh water which is present in rivers and lakes and ponds, is suitable for drinking. The water which is present in ocean and sea is not suitable for drinking. Why? Because it contains some amount of dissolved salt in it. Children, now let's discuss about what are the different forms of water. Children, water exists in 3 forms: solid state, liquid state and gaseous state. In solid state, the liquid occurs in the form of ice or snow at the poles of the earth and glaciers and snow-covered mountains. And in liquid state, water is present in ocean, lakes, rivers and groundwater. And in the gaseous state, water is found in the form of water vapor which is present in the atmosphere. बच्चों, आपने कभी सोचा है पृथ्वी पर जल की आपूर्ति कैसे होती है? बच्चों, पृथ्वी पर जल की आपूर्ति होती है जल चक्र के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या है जल चक्र। व्हाट इज वाटर साइकिल? तो बच्चों, आइए जानते हैं जल चक्र क्या होता है। व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म्स व्हिच कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट. दैट इज सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ and the atmosphere in its different forms, that is solid, liquid and gaseous form, which keeps the total amount of water constant. Children, there are some different phases which keeps the water cycle going. What are they? That is evaporation, condensation, precipitation and collection of water. तो सबसे पहला जो स्टेप है that is evaporation. What do you mean by evaporation? You have learned in lower classes. That is when water gets converted into water vapor, we call it as evaporation. So what happens children? During evaporation, due to the sun's heat, सूरज की गर्मी की वजह से पानी जो है different sources से पानी जो है गर्म होकर भाप में बदल जाती है.
That is, water gets converted into water vapor and it goes into the atmosphere. Now the second step is condensation. Condensation में क्या होता है? Water vapor rises up in the atmosphere and condenses to form water droplets, and these water droplets collect together to form clouds. कहने का अर्थ ये है कि बच्चों, कंडेंसेशन मीन्स जब वाटर वेपर बन जाती है और अपर एटमॉस्फेयर में जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होने की वजह से भाप वापस जो है पानी में बदल जाता है, पानी की बूंदों में बदल जाता है, और ये जो पानी की बूंदें हैं कलेक्ट होकर क्लाउड बनाती है। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज प्रेसिपिटेशन। बच्चों, प्रेसिपिटेशन मीन्स जो रेनफॉल या स्नोफॉल होता है उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट इंक्रीज, यानी जब अपर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, तब जो है वो बारिश के रूप में नीचे पृथ्वी पर आ जाते हैं, या फिर कुछ जगहों पर स्नोफॉल के रूप में पृथ्वी पर हमारे अर्थ पर आते हैं। तो इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एंड द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ वाटर। जब प्रेसिपिटेशन के रूप में यानी कि रेनफॉल या स्नोफॉल के रूप में पानी अर्थ पर आते हैं तो वेरियस सोर्सेस में कलेक्ट हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वाटर। दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन डिफरेंट सोर्सेस लाइक pond, river, lakes, etc. So this whole cycle is known as water cycle. Children, let's define one more time. What is water cycle? Water cycle is the continuous cycling of water among its three forms. The three forms means solid, liquid and gaseous forms, which keeps the total amount of water on the earth constant. So water cycle की वजह से जो हमारा वाटर कंटेंट होता है अर्थ का वो कांस्टेंट रहता है। इसी को हम जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। बच्चों, शहरों में तो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है जिसके द्वारा हमको शुद्ध जल प्राप्त होता है, लेकिन गांवों में लोग जो है वेल, ट्यूबवेल और हैंडपंप के द्वारा शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है वेल, ट्यूबवेल और हैंडपंप में पानी कहाँ से आता है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वेल, ट्यूबवेल और हैंडपंप में जो पानी आता है इसको हम भूजल कहते हैं या भौम जल। भौम जल का अर्थ होता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे का पानी। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर, एज द नेम सजेस्ट, is the water which is present underground or beneath the surface of the earth, यानी जमीन के नीचे का पानी जिसको हम वेल, ट्यूबवेल या हैंडपंप के द्वारा इस्तेमाल करते हैं उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। सो जमीन के नीचे पानी कहाँ से आता है? The rain water and water from other sources seeps below the earth's surface and fills the space between the soil. कहने का मतलब ये है कि जब वर्षा होती है पानी जो है बहकर जमीन के नीचे चला जाता है और मिट्टी के बीच में जो जगह होती है उसको भर देती है। इसी से जो है ग्राउंड वाटर का सोर्स बनता है। तो इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। बच्चों, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, यानी जो जिस प्रोसेस से पानी जो है नीचे जाता है उस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। एंड द प्लेसेस वेयर ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड इज कॉल्ड एक्वीफर। और जिस चट्टानों के नीचे हमें पानी मिलता है उस प्लेस को हम एक्वीफर कहते हैं। AQUIFER। तो इसे हम एक बार और देखते हैं। व्हाट इज ग्राउंड वाटर? Ground water is the water present underground or beneath the surface of the earth, यानी जमीन के नीचे का जो पानी होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और वहाँ पर पानी पहुँचता कैसे है? बारिश के समय जो पानी जमीन पर गिरता है वो बहकर मिट्टी के नीचे चला जाता है और सॉइल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ ऑक्युपाई कर जाता है, और रॉक्स के जो लेयर होते हैं उसके बीच में जो है पानी जमा हो जाता है। इस पानी को हम
ग्राउंड वाटर कहते हैं या भूजल या भौम जल कहते हैं। और बच्चों जो प्रोसेस होता है जिससे कि पानी नीचे की ओर जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। और जिस जगह पर हमें ग्राउंड वाटर काफी मात्रा में प्राप्त होता है उस जगह को हम कहते हैं एक्वीफर। चिल्ड्रन, मुझे उम्मीद है आपको ग्राउंड वाटर क्या है समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों, अगर हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें तो क्या होगा? एक दिन ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना पानी जो है बारिश से ज़मीन के नीचे नहीं जाता है। इफ़ यू कीप ऑन टेकिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वन डे द सोर्स विल एग्जॉस्ट। बारिश का पानी तो उतना ही होता है जितना होता है, लेकिन हम जो है ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हैं। तो एक दिन क्या होगा, ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के नीचे का पानी जो है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट द ग्राउंड वाटर, यानी ज़मीन के नीचे का पानी का जो लेवल है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स which causes depletion of groundwater. So, depletion of groundwater, the first factor is increase in population, यानी जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर यानी भूजल जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स यानी जनसंख्या की वृद्धि यानी डिमांड फॉर मोर फ्रेश वाटर। जैसे कि हमने शुरू में बताया, फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है हमारे पास? केवल 1%। 71% ऑफ वाटर में से केवल 1% जो है फ्रेश वाटर है, यानी हमारे उपयोग किए जाने योग्य पानी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा क्या होगा? डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर विल इंक्रीज। और पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ क्या होगा? डिमांड फॉर स्पेस टू लिविंग, यानी रहने की जो जगह उसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, घर बनेगा, शॉप्स बनेंगे, रोड बनेंगे। तो एंड दिस विल डिक्रीज द ओपन एरियाज। तो इस वजह से क्या है? ओपन एरियाज, ओपन एरिया यानी कि पार्क, प्लेग्राउंड या फॉरेस्ट एरिया में कमी आएगी। जब पार्क, प्लेग्राउंड और फॉरेस्ट एरिया में कमी आएगी तो क्या होगा? बारिश का पानी जो है नीचे नहीं जाएगा, ज़मीन तक, मिट्टी तक नहीं पहुंच पाएगा, और इस कारण जो है ग्राउंड वाटर यानी भूजल की कमी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग कल कारखानों का बढ़ना। जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे तब क्या होगा? वाटर यूज्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ग्राउंड वाटर, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं मोस्टली सब में पानी का उपयोग होता ही होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सामग्री जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बनने के जो प्रोसेस होता है उसमें पानी कहीं ना कहीं आता ही है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे पानी का उपयोग, पानी का जो कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा। और जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं उसको ये पानी कहाँ से मिलता है? मोस्टली सारे इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो ग्राउंड वाटर को ही इस्तेमाल करते हैं। सो आवर सेकेंड फैक्टर इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज मीन्स वाटर यूज्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ग्राउंड वाटर, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें ग्राउंड वाटर का ही पानी इस्तेमाल होता है। हमारा तीसरा फैक्टर है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ये तो आप सभी को पता होगा, एग्रीकल्चर के लिए क्या मस्ट है? पानी, यानी वाटर बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चों, क्योंकि रेनफॉल जो है कम होता है या फिर कुछ जगहों पर नहीं के बराबर होता है, तो इस वजह से फार्मर्स, हमारे जो किसान होते हैं, वो इरिगेशन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? ग्राउंड वाटर यानी भूम जल या भूजल के ऊपर वो निर्भर होते हैं। और धीरे धीरे जो है वो ग्राउंड वाटर जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा।
बच्चों हमारा चौथा फैक्टर है लो रेनफॉल। लो रेनफॉल यानी कुछ जगहों पर बारिश बहुत ही कम होता है। बारिश कम होगा तो पानी का जो सीपेज है यानी ज़मीन के नीचे जो पानी जाएगा वो भी कम होगा। इस वजह से जो है कुछ प्लेसेस में स्कैंटी रेनफॉल की वजह से भी वहाँ का जो वाटर टेबल है बहुत ही लो होता है। यानी वाटर टेबल लो होता है यानी कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है, जो सोर्स होता है वो भी कम होता है। सो चिल्ड्रन, these were the factors which causes depletion of groundwater. Let's see one more time. What are the factors? Number 1, increase in population यानी कि जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि यानी कि फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी। There will be a demand for space to live in, which will create increase in construction of house, shopping malls, places, roads, etc. The second factor is increasing industries यानी कल कारखानों का बढ़ना। कल कारखानों जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सारे इंडस्ट्रीज में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। और तीसरा फैक्टर था हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यानी फार्मर्स जो है अपने इरिगेशन के लिए टू वाटर द प्लांट्स, टू वाटर द क्रॉप, द फार्मर्स यूज ग्राउंड वाटर। एंड द लास्ट पॉइंट वाज लो रेनफॉल। कुछ जगह पर जो है कम बारिश होती है, इस वजह से भी वहाँ जो है ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सो दीज वर द फैक्टर्स विच कॉज डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। बच्चों अब हम बात करते हैं जल के वितरण के बारे में यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं भारत एक बहुत ही विशाल देश है और यहाँ पर हर क्षेत्र में एक समान वर्षा जो है नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा होती है जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, तो कहीं पर जो है बहुत ही कम वर्षा होती है जिसके कारण सूखा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान गेट वेरी लो रेनफॉल एंड देयरफॉर हैव वेरी लेस वाटर। ऑन द अदर हैंड इफ इट इन मेघालय देयर अकर्स हेवी रेनफॉल and therefore they receive a high rainfall. So at the same period of time in some parts of India there is a flood like situation and in some parts of the country there is a drought like condition. Children, now let's talk about water management. Water management means पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना। No matter whether a place receives a high rainfall or low rainfall, water management is very necessary to ensure that that region receives an adequate supply of water. Children, normally the civic authorities of a region are responsible for adequate supply of water in that area. यानी कोई जगह का जो सिविक अथॉरिटी होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहाँ के एरिया में हर घर में पानी पहुँचाया जाए। फॉर एग्जाम्पल इन पोर्ट ब्लेयर, अगर हम पोर्ट ब्लेयर शहर को ले लें तो हमारा जो PBMC है यानी कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हर घर में पानी पहुँचने के पीछे। तो बच्चों व्हाट आर देयर फंक्शंस, उनका क्या काम होता है? दे शुड मेंटेन वेल स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन सिस्टम, यानी सिविक अथॉरिटी का काम होता है वेल स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन सिस्टम टू डिलीवर वाटर टू एवरी हाउस। सेकेंडली इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि अगर कहीं पर पाइपलाइन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लीकेज होता है, तो ये सब मेंटेनेंस का जो काम होता है ये भी सिविक अथॉरिटी का ही होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, हम वाटर को किस प्रकार से जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे कि बहुमूल्य जल को व्यर्थ होने से हम कैसे रोक सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी सेव वाटर। चिल्ड्रन, यू कैन बी अ लीडर to educate people about water management skills. You can educate people about water-wise habits and that can be gradually developed. So number 1, turn off the tap while brushing, shaving and washing hands. यानी जब आप ब्रश करते हो, शेव करते हो या हाथ धोते हो तब आपको टैप जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए। Second one, mop the floor instead of washing. यानी हम
जब फ्लोर को वॉश करते हैं उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से पानी में उसे पोछा लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग शावर यूज अ बकेट ऑफ वाटर टू टेक बाथ, यानी शावर के बदले हम नहाने के लिए एक छोटे से बाल्टी में पानी की मदद से हम नहा सकते हैं। नंबर 4, रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो बारिश का पानी है जो बहकर वेस्ट हो जाता है उसको हम ग्राउंड वाटर को उसको इकट्ठा करके हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किस टेक्निक का उपयोग करके? रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के द्वारा। We all enjoy rain with a cup of tea and a newspaper, but never thinks to save the gallons of rainwater which flows away. Rainwater can be skillfully used to recharge the groundwater. The modern buildings of schools, offices, homes can install a rainwater harvesting system. Rainwater harvesting system consists of the following components: catchment, that is used to collect and store the captured rainwater; filter, used for filtering the collected rainwater and remove the pollutants; tanks and recharge structures, used to store the filtered water which is now ready to use. Number 5th point, farmers can use water economically by drip irrigation, यानी हमारे जो किसान बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए खेतों में, वो अगर ड्रिप इरिगेशन टेक्निक अपनाए तो बहुत कम पानी में जो है वो इरिगेशन कर सकते हैं। तो क्या होता है ये ड्रिप इरिगेशन? ड्रिप इरिगेशन में जो है छोटे छोटे ट्यूब्स और ट्यूबिंग्स की मदद से सीधे जो है पेड़ के जड़ों में पानी दिया जाता है। इस तरह से हम काफ़ी मात्रा में इरिगेशन में जो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है उसकी हम बचत कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, लेट्स सी वन मोर टाइम व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन सेव वाटर। सो फर्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू, टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग, शेविंग एंड वॉशिंग हैंड्स। हाथ धोते वक्त और ब्रश करते वक्त जो है आपको टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, आप जो है फ्लोर को मोप कर सकते हैं, वॉश करने के बदले कम पानी के द्वारा आप मोपिंग कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग शावर के बजाय हम बाल्टी में पानी लेकर नहा सकते हैं। और चौथा पॉइंट, बारिश का पानी उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं और घर के अन्य कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मर्स कैन यूज वाटर इकोनॉमिकली बाय ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक से फार्मर्स जो है खेतों में जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा जो है कम से कम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थी हमारे हाउ वी कैन सेव वाटर। चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डिस्कस हाउ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इफेक्ट्स द प्लांट। चिल्ड्रन, एज वी नो, plants need water to obtain nutrients from the soil to perform the process of photosynthesis to make food. If there is scarcity of water, then this will affect the nutrient uptake from the soil by the plants. This in turn will result in decline in the rate of photosynthesis. Rate of photosynthesis will decline means there will be shortage of food, shortage of oxygen and शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। इट मीन्स चिल्ड्रन, जैसे कि हम जानते हैं पौधों को भोजन बनाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उस न्यूट्रिएंट्स को वो कहाँ से लेते हैं? पानी के थ्रू सॉइल से लेते हैं। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू टेक द appropriate or adequate amount of nutrients and water from the soil and this will result in, ये क्या होगा? इसके बाद पौधे जो है फोटोसिंथेसिस ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। सो दिस विल रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। इसका मतलब यह है कि अगर बारिश की कमी होगी तो पृथ्वी से हरियाली जो है लुप्त हो जाएगी। हरियाली अगर लुप्त हो गई इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से जीवन का अंत भी हो सकता है। तो बच्चों,
पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चों, पादपों के ना होने पर ना ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन होगा, ना ही भोजन होगा और ना ही पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी। Children, now let's revise what we have learned today. 71% of the earth consists of water, and out of this 97.5% of water is present in ocean and seas, and only 1% is the fresh water which is suitable for drinking. Children, what is water cycle? The continuous recycling of three forms of water which takes place, and the amount of water on earth is maintained constant. This is called water cycle. What is groundwater? Groundwater is the water which is present beneath the earth's surface in soil pores and rock formations. Now, what are the causes of depletion of groundwater? The various factors which causes depletion of groundwater are increase in population, industrial and agricultural activities, scanty rainfall and deforestation. Children, what are water-wise habits? Water-wise habits are turn off the tap when not in use, mop the floor instead of washing, use water in bucket for bathing instead of using showers, develop a rainwater harvesting skill. What is the effect of water scarcity on plants? Rate of photosynthesis will decline and oxygen evolve will be less. That is, shortage of water will lead to shortage of food, shortage of oxygen and shortage of rainfall. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, keep smiling and keep learning. See you next time. Bye bye children.